start with the new topic from 10th standard, that is gravitation. So we know this word actually, जो gravitation, gravitational force, gravity of earth, we know this word, but actual क्या है gravitation, वो हम ये chapter में देखेंगे. See the screen. The phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. We know this. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from tree on the ground. जब उसने ये डिस्कवर किया ग्रेविटेशन, ये ऐसा कुछ फेनोमेनन है, ये जब उसने डिस्कवर किया तो वो कैसे डिस्कवर हुआ? He discovered the force by seeing an apple fall from tree on the ground. He wondered why all the apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. After much thoughts, he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself, and this attractive force must be directed towards the center of the earth. The force on an apple on the tree is downward. The center of earth, that is along the perpendicular from the position of apple to the surface of earth. See, very simple concept है. उसने जो gravitation discovered किया सर इसैक न्यूटन ने, वो कौन से बेसिस पे किया? One day he found that apples fall vertically downwards from the tree. So he wondered why all apples fall downwards. ऊपर के साइड क्यों नहीं वो जा रहे हैं? मींस देखो ना, कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है ना, ये चली जाती है वो. It comes down or it come towards the earth. This is because of the earth must be attracting the apple towards itself. Not only apples, there are all things which are attracted towards the earth, and this attractive force must be directed towards the center of earth. Means अगर ये earth है, okay, ये earth है, हम लोग ये surface पे, ये पूरी ऐसी earth है, ये earth का surface है, हम लोग ये surface पे है. So this earth has attracting force towards the center. Because of that we hold ना, यहाँ पे हम खड़े हैं, वो किसके वजह से खड़े हैं? Because this attractive force, and because of that attractive force the person can hold with the earth. Get it? And this attractive force of earth which is towards the center of earth, towards the center, ये force है, means उसकी direction जो है वो ये है, ये अर्थ है, पूरी अर्थ है, ये अर्थ का एक सरफेस है, मतलब ये ऐसे यहाँ पे सेंटर है, तो वो जो फोर्स है इट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. दिस फोर्स इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स. गेट इट? दिस इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ये मैंने एप्पल फॉल का ये एग्जांपल यहाँ पे दिखाया. नाउ सी, देयर आर मेनी सैटेलाइट्स आर देयर. ओके, जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. जो मैनमेड सैटेलाइट है, जैसे कि वो सैटेलाइट के जो यूजेस है वो डिफरेंट केसेस में होते हैं. वेदर फाइंड आउट करने के लिए, या फिर अभी मोबाइल नेटवर्क के लिए भी सैटेलाइट लगता है. देन टीवी कनेक्शन, ये सब के लिए जो सैटेलाइट का रोल रहता है, दैट सैटेलाइट आर नेचुरली अकरिंग और मैनमेड सैटेलाइट. सो अगेन वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऊपर, मतलब अर्थ के सरफेस के इस पे ही वो राउंड करता है ना. मतलब अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ को ही वो सैटेलाइट जो है वो सराउंड करता है. देखो मैंने ये डायग्राम यहाँ पे दिखाई है ब्लू कलर के, इसमें ये अर्थ है, अर्थ के इसमें से एक साइड के ऑर्बिटल से वो सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा. तो वो सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में अर्थ के साइड में ही क्यों घूम रहा है? बिकॉज अर्थ हैज ग्रेविटेशनल फोर्स. बिकॉज ऑफ दैट द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सैटेलाइट. The earth gravitational force hold the satellite towards itself.
Get it? Next is the, obviously there is a natural satellite, that is moon. In between moon and earth, again there is an attractive force is present, which is nothing but gravitational force. And because of that, the distance between the moon and earth is less compared to all other elements. सबसे नजदीक अर्थ के अगर कोई है तो वो है मून. ठीक है, अंडरस्टूड? up to this clear? Shall I move further? Yes, no, कुछ तो बोलो. Yes. कौन बोले यस? कशिश. मैंने बोली है. मग. Okay, next one. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अभी न्यूटन, इसैक न्यूटन ने ये फाउंड किया है कि ग्रेविटेशन कुछ तो एग्जिस्ट है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सैटेलाइट, और अर्थ एंड एनी अदर स्पीसीज व्हिच आर नियर टू द सैटेलाइट. सो देयर इज an attractive force between them. So according to that, there is a Newton's universal law of gravitation. See, according to this theory, just a minute, विवेक, फर्स्ट 2 स्लाइड जो सिखाए मैंने वो समझे तुझे? हाँ विवेक, तू पण मला पेपर सेंड केलास पण मी तुझा पेपर चेक नाही केला. द रिझन इज दॅट तू लेक्चरलाच नव्हतास. होतास का पिरियडिक टेबलच्या लेक्चरला? मग तू पेपर कसा लिहिलास, तुला कसा आला? म्हणून मी पेपर चेक नाही केलाय. बोल. ते वाचला आणि मग शोधून लिहिलं. ठीक आहे, मी नाही चेक केलं, मी तुला सांगते आज संध्याकाळी मी तुला मेसेज करते. ठीक आहे, ओके. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, फर्स्ट सेंटेंस, every object in the universe attract every other object with a definite force. According to this theory, every object in the universe attract every other object with a definite force. Again same, we know this gravitation, abhi just हमने discuss किया. This force is directly proportional to the product of masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. See, product of the masses and square of the distance. Mass increases, gravitational attraction or gravitational force between the earth and that matter which having a mass are increases. For example, यहाँ पे दो masses दिखाए हैं, M1 and M2. So in M1, which has a large in size, so it has a large mass. M2 has small in size compared to M1. M2 has smaller in size, so which has smaller mass. Mass of the compound or mass of the object increases, the force of attraction between the earth and the object will increases. Get it? See, अगर कोई heavy चीज है तो उसको उठा पाते हैं क्या इजीली? कोई अगर हेवी चीज है तो उसको, फॉर एग्जांपल ये देखो ना, अगर ये M1 जो है वो अगर आयरन का होता बॉल, ठीक है, और M2 जो है वो नॉर्मल लकड़ी का है, तो इसमें से हेवी कौन सा है? एक आयरन बॉल है, एक नॉर्मल वुड बॉल है, तो इसमें से हेवी कौन सा है? आयरन बॉल है. तो वो जो हेवी बॉल है वो इजीली उठाएंगे या M2 वाला इजीली उठाएंगे? M2 वाला, बिकॉज हेवी बॉल में मास ज्यादा होने की वजह से उसमें और अर्थ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है. ओके, so mass of the object increases, the force of attraction between the earth and that object also increases. Next one, उसमें नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट में ही आगे कंटिन्यू किया है, and it is मतलब force is inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional है, so distance increases,
force of attraction decreases. ये तो हमें normally पता है. When two objects is there, this is the distance between two objects. दूसरे एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में ज्यादा है? इसके बीच में ज्यादा है या इसके बीच में? इसके बीच में ना, बिकॉज एटम्स आर नियरर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर. तो यही दिया है, रेडियस इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. तो रेडियस इज radius is inversely proportional to the force and masses is the directly proportional to the force. Mass of the object increases, force of gravitation increases. Then distance increases, force of attraction decreases. Now see in this example, दो masses दिए हैं F1 and F2 and distance between the nucleus of two atoms is R. We know F is directly proportional to mass and inversely proportional to radius. यही लिखा है मैंने, F directly proportional to M1 M2, inverse and inversely मतलब d square जो है वो नीचे आया. So F M1 M2 divided by d square directly proportional to each other. और इसको ही हम चेंज करके लिखेंगे, F is equals to G M1 M2 divided by d square. ये G कहाँ से आया? इक्वेशन सेम है ऊपर का और नीचे का. अभी आप बोलोगे ये डी कहाँ से आया? डी इसलिए आया, डी कहाँ से आया? टेल मी. डिस्टेंस. सी ना, हमने क्या बोला? रेडियस. रेडियस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड जो उसका सरफेस है, दैट इज द रेडियस. ओके, यहाँ पे हम दो मासेस कंसिडर कर रहे हैं, M1 एंड M2. So distance between the two masses is nothing but d. Get it? Now this G is the constant of proportionality and is called the universal gravitational constant. Again, SI unit of this force is G. Unit of G is Newton meter square per kilogram square, per square kilogram. सी यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है बच्चों? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? भाग्यलक्ष्मी क्या हुआ? मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रहा है. आप ये ऐसे बैठने वाले रहोगे. यस, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ओके, देखो अभी हमने यहाँ पे जो एसआई यूनिट है वो जी का निकाला है, जी का, ये इसका. तो इसका न्यूटन यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो ये जी का यूनिट निकालना था. सी, ये जी का यूनिट निकालना था. सो जी का यूनिट निकालने के लिए ये जो टर्म्स है वो ये साइड आएंगे. तो ये टर्म क्या आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर मतलब ये सॉरी मास, हाँ मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर दैट स्टैंड्स फॉर डी, डिस्टेंस, एंड किलोग्राम रेज़ टू -2. M1 के लिए किलोग्राम, M2 के लिए किलोग्राम. किलोग्राम किलोग्राम इट इज किलोग्राम स्क्वायर होता है. अभी ये G निकालने के लिए ये जो टर्म है राइट साइड में वो पूरा लेफ्ट में ले लो. वो पूरा लेफ्ट में लिया तो वो इक्वेशन क्या बनेगा? F इंटू डी स्क्वायर अपॉन M1 M2. यहाँ तक समझा? सी, F का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू G M1 M2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर. हमें क्या चाहिए? हमें G चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए. तो D कैलकुलेट करने के लिए क्या किया? ये जो टर्म है जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में लिए, रिवर्स हो गए. मतलब लेफ्ट साइड में क्या बनेगा? F इंटू डी स्क्वायर अपॉन M1 M2. यस और नो? यस और नो?
F इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। तो अभी उसमें पुट करो ना उसके यूनिट, F का यूनिट है न्यूटन, डी स्क्वायर का यूनिट है डी, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, डी स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, देन डिवाइड बाय m1 m2, m1 का यूनिट है किलोग्राम, m2 का यूनिट है किलोग्राम, सो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, दैट इज नथिंग बट किलोग्राम स्क्वायर। वो किलोग्राम स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा किलोग्राम पर स्क्वायर, एग्री और नॉट। So the SI unit of G is, G means constant of proportionality or gravitational constant. So the unit of gravitational constant is Newton meter square into kilogram per square. Agree? Up to this clear? Yes? No? कुछ नहीं? सब कुछ समझा क्या?